بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں، دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میرا سلام پہنچے۔ میں پاسٹر طارق جان آج پھر شکر گزاری سے بھرا ہوا ہوں کہ ہم ایک اور آج خوبصورت بابرکت گھرانے کے ساتھ اس پروگرام بابرکت گھرانہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے یقیناً آپ برکت پائیں گے، جیسے آپ پہلے جوشوا ٹی وی کے اچھے اور خوبصورت پروگرامز کے وسیلے سے کلام سیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ آج یہ پروگرام جو ہے یہ در حقیقت زندگیوں کی گواہیوں کا ہے، اور یہ ہماری گواہیاں ہوں گی ہمارے مہمانوں کی کہ کس طرح سے خداوند نے ان کی زندگیاں تبدیل کی، اور میرا ایمان ہے اس طرح سے آپ کی زندگی بابرکت ہوگی اور آپ بھی ان گواہیوں کو سن کر برکت پائیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں، میں اپنے آج کے خوبصورت مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے بھائی ڈیکن آصف مسیح صاحب، وہ ڈیکن ہے، چرچ میں ڈیکن کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ خداوند کے ساتھ خدمت میں بڑے مگن ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں ان کی زندگی کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں، مسز شبانہ آصف، وہ بھی خداوند میں بڑی مگن ہے۔ اور یہ بابرکت گھرانہ جو آج آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کو مل رہے ہیں جوشوا ٹی وی کے وسیلے، میرا ایمان ہے میں پھر کہوں گا آپ ان کی گواہی سے برکت پائیں گے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرے فضل کو، تیرے رحم کو، تیری مہربانی کو ہم خداوند جوشوا ٹی وی کے لیے، جوشوا ٹی وی کے سارے پروگرامز کے لیے، اور اس جوشوا ٹی وی کے پروگرام کے لیے، بلیسڈ فیملیز کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند یہ بلیسڈ فیملی جو آج ہمارے ساتھ ہے، یہ بابرکت گھرانہ، ان کی گواہی سے خداوند قدوس خدا آج بہت سارے ناظرین جو جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ برکت پائیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تو جی ناظرین، میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم ان کی گواہی لینے سے پہلے ان سے یہ پوچھیں، جی بہن آپ کیسے؟ خداوند کا شکر ہے، خداوند کے فضل سے ٹھیک ہے، آمین۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ سلامتی سے ہیں، خداوند نے انہیں سلامتی سے رکھا، اور اس کپل کے متعلق، ان کی گواہیوں کے متعلق اب بھی ہم آگے مزید دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں جب ان کی گواہیوں کے متعلق سنیں تو میرا ایمان آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے، کیا آپ جوشوا ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہالیلویا ہالیلویا، کیوں نہیں، جوشوا ٹی وی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اپنا چینل ہے، آمین، ان کے فضل سے، اور ہمیں اس چینل پہ فخر ہے کیونکہ پنڈی اسلام آباد کا یہ پہلا چینل ہے، اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس چینل کے لیے جو ساری دنیا کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور خدا ان کے فضل سے اس چینل سے ہم بہت برکت پاتے ہیں۔ اور میں سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے خوش ہوں کہ آج میں جوشوا ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آمین۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین، جوشوا ٹی وی کا سلوگن ہی یہ ہے، ہوپ فار دی نیشنز۔ تو یہ قوموں کے لیے امید ہے، قوموں کے لیے برکت ہے جوشوا ٹی وی، اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی بہن، آپ بھی جوشوا ٹی وی دیکھتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہم نے جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے، بہت سے معجزات حاصل کیے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ وسائل ہمیں مہیا ہوا ہے۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے بھائی سے ایک سوال کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیں
किस तरह आप यीशु मसीह के पास आए, किस तरह आपने निजात पाई? हालेलुया, मैं खुदाउन का शुक्र करता हूँ खुदाउन के इस बड़े फजल के लिए कि मैं इस वक्त जशवा टीवी पे आपको बल्कि बहुत सारी दुनिया को ये गवाही शेयर कर रहा हूँ कि खुदावन ने किस तरह मुझे तब्दील किया। जी, मैं शादी से पहले भी था, लेकिन खुदा के फजल से खुदाउन में था, लेकिन उस तरीके से नहीं था जिस तरह तरीके से होना चाहिए। तो खुदाउन का शुक्र है, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरे 3 बेटे, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो वो पैदा होते ही बहुत बीमार था। तो जैसे जैसे वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का हुआ, मतलब जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था, दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से हम बहुत परेशान थे। तो खुदा के खादम ने मुझसे कहा कि खुदावंद आपको बुलाना चाहता है, इस बच्चे की वजह से खुदावंद आपको अपने पास बुलाना चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि पहले मैं दुआ तो पहले भी मैं कर रहा हूँ, चर्च भी जाता हूँ, हर काम करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरा बच्चा शफा पा जाए और मैं खुशहाल, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। तो उस खादम ने कहा कि खुदावंद आपको प्रॉपर तौर पर बुलाना चाहता है कि आप बपतिस्मा लें, खुदावंद के फजल से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और प्रॉपर तौर पर खुदावंद के साथ चलें। तो फिर मैंने 2010 में बपतिस्मा लिया और मुकम्मल तौर पर खुदावंद के साथ चला। और खुदावंद का शुक्र है कि उस वक्त से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, मेरे बच्चे के वसीला से हुई है। आमीन। तो वरना पहले तो ऐसे ही था जैसे दुनियादारी है, जैसे मतलब होना जैसे खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अब मैं खुदावंद के साथ मुकम्मल तौर पर चल रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र उस वक्त से अब तक 2010 से लेकर 2018 ये 8 साल हो गए मुझे खुदावंद के साथ चलते। उसमें खुदावंद ने मुझे बहुत सारी बरकतें दी हैं, बहुत सारा फजल दिया। सबसे बढ़कर ये कि मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये गवाही है कि जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो खुदावंद के फजल से उस वक्त भी थे पास्टर, उस वक्त भी खादम थे। लेकिन आज अब जब मैं जिस पास्टर के साथ हम खिदमत कर रहे हैं, पास्टर तारिक जॉन है, इसके वसीला से खुदावंद हमें बहुत सारी बरकतें दे रहा है। और सबसे बढ़कर हमें इस कलाम की सच्चाइयों से, जो गहरे खुदा के भेद, इस कलाम से हमें वाकफियत करवा रहा है, जो खुदा का सच्चा और ज़िंदगी बख्श कलाम है। खुदावंद आपको और बरकत दें। तो सिस्टर जी, आप अपनी गवाही देंगी कि आप किस तरह आपने यीशु मसीह को कैसे कबूल किया और कब किया? मेरे साथ बहुत से पास्टर मिले हैं, वो कहते रहे हैं कि आप बपतिस्मा बहन क्यों नहीं ले लेती। मैंने बोला जब तक मैं बपतिस्मे के मकसद को समझूंगी नहीं तो मैं कैसे बपतिस्मा ले सकती हूँ। जब तक कलाम को इंसान समझे ना तो वो कैसे उस पर अमल कर सकता है। फिर इसी तरह मैं वक्त गुजरता गया, वक्त के गुजरते गुजरते मेरी शादी होगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू बपतिस्मा ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेना जब तक मुझे कोई उसका मकसद सही नहीं समझाएगा। फिर इस तरह एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च गई, गॉस्पेल चर्च में आई, तो फिर मुझे पता चला उस दिन लेक्चर ही ये था, टॉपिक ही ये था कि बपतिस्मा लेना इंसान की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर मैंने उस कलाम ने मेरी ज़िंदगी पे इतना असर डाला कि उसने मेरी ज़िंदगी, मेरा घराना ही बदल डाला। उस दिन कलाम ये था कि एक औरत थी कि उसने सोचते सोचने में इतनी वक्त गुजार दिया कि उसका आखिरी बिल्कुल वक्त आ गया कि वो खुद से बपतिस्मा नहीं लेने जा सकती थी। एक टब मंगवाया कि उसने कहा मुझे उसमें बपतिस्मा दिया जाए। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के साथ इसी तरह खेल रही हूँ, क्यों नहीं कि मैं इस कलाम को समझूं। फिर मैंने काफ़ी देर, 12 बजे चर्च ख़त्म हो जाता है, मैंने 2-3 बजे तक इस कलाम के मुतालिक सोचा कि वाकई ही बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, जो कलाम सच कहता है उस पर अमल करना ज़रूरी है। फिर मैंने आप पास्टर तारिक जॉन को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने बपतिस्मा लेना, अगर आप मुझे दिला दे तो। उन्होंने कहा इससे बड़ी खुशी की कौन सी बात है, मैं तो हर वक्त तैयार होता हूँ कि तौबा करो तो आओ, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर बपतिस्मा दिया। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी इतनी तब्दील होगी कि मैंने खुद महसूस किया कि मेरे जो बेटे हैं, मैं कहती हूँ कि वो ज़माना इस कदर तेज़ी से आगे जा रहा है कि कलाम पीछे रहता जा रहा है। मैंने फिर जब बपतिस्मा लिया, मैंने कहा, मैंने सच्चाई को समझा, मैंने अपने बेटों को इकट्ठा किया, मैंने कहा मैं अपने पूरे घराने समेत खुदावन की हजूरी में झुकूंगी। ये सच्चाई मेरे सामने खुली कि तब मुझे ये बरकत मिलेगी। फिर ये बरकत मुझे उस वक्त मिली
उस वक्त से लेकर आज तक मैं अपने घराने समेत खुदावन की हजूरी में जाती हूँ। हर संडे मैं खुदावन की हजूरी में आती हूँ, इसलिए कि मुझे सच्चाई की समझ आ गई है। मैं सच्चाई को जान चुकी हूँ, क्योंकि खुदावन का कलाम सच्चा है। वो जिस ज़िंदगी पर खुल जाता है वो ज़िंदगी बदल डालता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआज़ा यही है, पास्टर जॉन की वसीला से मेरी ज़िंदगी में हुआ। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत गवाही बहन ने दी कि किस तरह से वो, और मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। आप देखते रहें और अभी हम और इनकी ज़िंदगी से गवाही लेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और वो जल गया था, लेकिन उसका बदन बिल्कुल दुआ के वसीले शिफायाब हो गया। हालेलुया, जाए शुक्रगुजारी करें। जी आ जाए। 4-5 दिनों से आपके सर में बड़ी शदीद दर्द थी और जाती नहीं थी। आपने दवाइयां भी खाई, लेकिन तो दर्द नहीं जाती थी। लेकिन अभी आप शिफा पा गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये देखें, ये बहन अपनी रिपोर्ट लेकर आई है। कैमरे को मारे इस बार। और ये बहन कहती है इसके पेट में गिल्टी थी और ये अपनी रिपोर्ट साथ लेकर आई। आपके पेट में गिल्टी थी, ये रसोली थी, ये रसोली थी, ये एक्सरे है इसका, वो अल्ट्रासाउंड, और ये आपके पेट में रसोली थी और आपने दुआ करवाई और अभी आपने दोबारा रिपोर्ट करवाई, तो अभी इसमें रसोली नहीं है। ओ बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आंटी जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टांगों का प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं होता। ये कितनी देर से था? बहुत अरसे से था, लेकिन साल यानी जैसे ही मौसम बदलते हैं ना, ये बीमारी आ जाती है। अभी आप शिफा पा गए बिल्कुल। अभी आपको ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि इसे यीशु मसीह ने खत्म किया। अब ये दोबारा नहीं आएगी। हालेलुया, जाए शुक्रगुजारी करें। बहन अख्तर, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? पत्र चौधरी। तो ये आपका बेटा था, इसका क्या नाम था? परवेश जी। हम दरगई से आए हैं, तो पहले मुझे किसी ने नंबर दिया पास्टर साहब का कि आप दुआ करवाएं। मेरे बाल जो थे बिल्कुल गिर गए थे, तो मैंने इनसे दुआ करवाई। मैंने कहा बेटा मेरे लिए दुआ करो, मेरे बाल बहुत गिर गए हैं। इन्होंने कहा आंटी आप तेल ले लें और अपने सर पे हाथ रख लें। मैंने अपने सर पे हाथ और तेल रखा, क्योंकि मेरे बाल अब जो थे ना बिल्कुल रुक गए हैं। तो मैंने कहा मैं आऊँगी। मैंने पास्टर साहब से कहा भी था, मैंने कहा बेटा मेरा दिल करता है, मैं आपको टीवी में देखती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपके पास उड़ के आ जाऊँ। खुदावन मुझे मैंने कहा खुदा मुझे अगर फल दे देना तो मैं आपके पास उड़ के आ जाऊँ। और खुदावन यीशु मसीह ने वो ही किया। मेरे बेटे का बहाना बना और मैं उड़ के अपने बेटे के पास। हालेलुया, तो आपके बाल गिरना बंद हो गए। बिल्कुल। अभी आपके बाल बढ़ रहे हैं। अभी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा दुआ कराऊंगी। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। मेरे पास जिथे दर्द होती सी, तो मैं कोट का ना कहीं तेरे गुर्दे च रेत है, पत्थरियां ने। उन्होंने कहा था यहाँ गुर्दों में पत्थरियां हैं, रेत है। हां जी, ते दर्द होती सी, हुन भी कोई खत्म हो गई और ये दर्द अभी खत्म हो गई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जाए शुक्रगुजारी करें, आपके गुर्दों को उसने शिफा दे दी।
नाजरीन वेलकम बैक। मेरा ईमान है जो गवाहियाँ अभी आपने इस ब्रेक में देखी उनसे आपका ईमान और बड़ा होगा, और खुदावंद ने चूँकि हम सबों को पहले ही बड़ी बरकत दी हुई है, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आज जो बाबरकत घराना हमारे साथ है, हम इनसे और कुछ थोड़ा पूछें। तो भाई आसिफ, आप ये बताएंगे आपको बाइबल मुकद्दस में से कौन सी आयत मुकद्दस सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप वो बताएंगे और पढ़ेंगे? जी हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत कलाम मुकद्दस पर पढ़ा और सुना जाना आमीन। तो इस आयत मुकद्दसा से आप कैसे क्या कहना चाहते हैं नाजरीन को? पास्टर साहब, असल में इसमें मोहब्बत का जिक्र है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में भेजा और हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ाया गया ताकि हम मोहब्बत को जानें। खुदा ने जैसे हमसे मोहब्बत की है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें ताकि इस कलाम को दुनिया तक पहुँचाए, क्योंकि मसीहत असल में नाम ही मोहब्बत का है। क्योंकि मसीहत हमें यही बताती है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, खुदा के बेटे ने हमसे मोहब्बत की है, खुदावंद यीशु मसीह ने। उसने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं सहा, अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि कोड़े खाए, अपने मुंह पे थकवाया, मुँह के खाए, यहाँ तक कि अपने आप को अजियत पहुँचाई, फिर भी उसने जाते वक्त सलीब पर हमारे गुनाहों को माफ़ किया। इससे बढ़कर और क्या मोहब्बत हो सकती है? तो इस आयत से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम एक दूसरे से क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत किया, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। तो सिस्टर जी, आप बताएंगे कि आप ये बताएं कि आपके घराने में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद क्या तब्दीली आई, और बच्चे आपके जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं? जोशुआ टीवी देखने से पूरे घराने ने बहुत सी बरकतें पाई हैं। और मेरा 4 साल का बेटा है, वो इतनी अच्छी दुआ करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसको किसी ने सिखाई है या उसके पीछे कोई रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। वो सिर्फ चर्च में ला कर पास्टर तारक का जो लेक्चर होता है उस पर वो उसने इतनी गौर करता है, पूरी दुआ इतने गौर से वो सुनता है कि घर जाके वो पास्टर तारक ही बना होता है कि मैं पास्टर तारक हूँ, मेरे से कलाम सुनो, मेरे ये देखो। वो ज़ुबानी हमें इतनी आयतें सुनाता है कि ये आज लेक्चर था, आज ये मैसेज हुआ है। तो इतनी बरकत है कि आज इस मैसेज से, इस चर्च की बदौलत, इस चैनल की बदौलत मेरे बच्चे और मेरा घराना 24 घंटे खुदावन की हजूरी में रहते हैं और उसके खौफ और डर के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा ईमान है, आपने बहन की गवाही सुनी किस तरह उनका बच्चा दुआ करता है, और यही बरकत की बात है, बाबरकत घराने की यही निशानी है। तो भाई आसिफ, आप कुछ कहेंगे जोशुआ टीवी के मुतालिक? हालेलुया, खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने पहले नंबर पे, मैं पहले भी बयान कर चुका कि खुदावन ने हमें ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो इसकी गवाहियों से, इसके जो आपका मैसेज होता है, हम तो पहले भी सुनते थे चर्च में खुदावन के फजल से आपका मैसेज, लेकिन खुशी इस बात की है कि दूसरे लोगों तक, जो लोग नहीं सुन रहे थे खुदा के सच्चे और ज़िंदा कलाम को, मैं कहता हूँ कि बहुत कम पास्टर मैंने देखे, बहुत कम पास्टर देखे कि जो इस तरह कलाम बयान करते हैं। समझे कि एक टीचर है, जिस तरह टीचर नहीं क्लास में बच्चों को बताते कि एक एक लफ्ज़ 10-10 बार समझाते हैं, उसी तरह हमारे पास्टर साहब समझाते हैं। और ये कलाम हम तो पहले भी सुनते थे। खुदावन के शुक्र, खुदावन का फजल है, खुदावन का शुक्र है। लेकिन खुशी इस बात के कि दूसरे लोग, जो लोग चर्च नहीं आ सकते, जैसे वो स्टेशन पेशावर हो गया, मरी हो गया, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये चैनल जा रहा है, जहाँ जहाँ तक जोशुआ टीवी जा रहा है, वो सब लोग सुन रहे हैं। और मेरा ईमान है, मैं ईमान से कहता हूँ कि यकीनन वो बरकत पाते होंगे वो, क्योंकि खुदावन का कलाम सच्चा और बाबरकत। और जोशुआ टीवी के वसीला से पहले भी हमारे घर में चलते थे चैनल, लेकिन जब से ये चैनल आया है, हमारे बच्चों में एक
अजीब जो है ना वो हो गई है, कशिश हो गई है। जैसे आते हैं हमारे पास्टर साहब, वो देखो पापा हमारे पास्टर साहब आए, तो वो साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं, कलाम सुनते हैं। वो बताते हैं कि ये कलाम हमने पहले भी सुना था, इस संडे सुना था, उस संडे सुना था, खुदाउन का शुक्र इस कन्वेंशन पे सुना था। तो खुदाउन का शुक्र है कि जोशुआ टीवी के वसीला से हम बहुत बरकत पा रहे हैं। इसके वसीला से हमारे बहुत से खुदाउन के फजल से जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं दुआ के वसीला से। खुदाउन का बहुत शुक्र करते हैं जोशुआ टीवी के लिए। आमीन। नाजरीन, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बच्चों के लिए जोशुआ टीवी एक और प्रोग्राम भी लेकर आया, सुपर बुक उर्दू में, और इस तरह और भी बच्चों के प्रोग्राम हैं, संडे स्कूल प्रोग्राम है। यकीनन आप जूजू साथ रहेंगे जोशुआ टीवी के, इसे देखते रहेंगे, अपने जीज़ों को भी बताएं, वो इसे ट्यून करें। इसकी फ्रिक्वेंसी 3750 है, इसे ट्यून करें, और जब वो ट्यून करेंगे, जिनके पास डिश है वो ट्यून करें तो वो बरकत पाएंगे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और अब कुछ मैं चाहता हूँ एक थोड़ी इनफॉर्मल बात भी करना चाहता हूँ। वो ये है कि कभी कभी घरों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान। उस वक्त क्या करते हैं, नाजरीन को ये भी बताएं। उस वक्त हम ये करते हैं कि जब हमारी होती है, पहले नंबर पे तो जो हमें मैसेज मिलता है हर संडे, हर जुमे, हर संडे जो मैसेज होता है वो यही होता है कि जो खुदा में मसीह में है वो इस तरह के काम नहीं करते। अगर कभी बच्चों की वजह से, ज़्यादातर बच्चों की वजह से होती है, बच्चे शरारत करते हैं, कुछ भी होता है, हो भी जाए तो कोई गुस्सा नाराज़गी हो भी जाए, तो उसके बावजूद मेरी मिसेस पता क्या कहती है, मैं ये आपको बताऊँ, पास्टर तारक को बताऊँगी मैं कि आप डीकन है उस चर्च के, आप इस तरह की हरकतें करते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं पास्टर तारक साहब कहते हैं कि गुस्सा करो लेकिन मसीह में रह कर, गुनाह नहीं करना, गुस्सा करना है, गुनाह नहीं करना। वेरी गुड। तो फिर आप कितनी देर में सुलह हो जाती है? सर तकरीबन 20-25 मिनट में ही, उसी वक्त, यानी जल्दी सुलह हो जाती है। तो सुलह करने में पहला आप बहन करती हैं या वो करते हैं? और जिसने कोई काम करना होता है वो सुलह कर लेता है। हाँ जी, वो फिर सुलह हो जाती है। वेरी गुड। नाजरीन, बहुत अच्छा, मसीह में इसी तरह बढ़ते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मसीह ख़ानदान है, घराना है, तो फिर इस दुनिया में होते हुए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मियाँ बीवी कशीदगी को बढ़ाएंगे और एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे तो उनकी बरकतें रुक जाएंगी, उनकी दुआएं रुक जाती हैं। इसलिए अगर कभी कोई नाराज़गी हो भी जाए तो उसे जल्दी माफ़ कर दे एक दूसरे को, और खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है आप भी इसी तरह दिल की सच्चाई के साथ खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते रहें, आपके बच्चे बरकत पाएँ, आपका घराना बरकत पाए। और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, आपका घराना भी बरकत पाए। हम आपके घराने के लिए दुआ गो रहेंगे। आप हमें लिख सकते हैं, नीचे कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम बाबरकत घराने में शामिल होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं। और इसमें आप रावलपिंडी में आकर हमारे पास मोहल्ला राजा सुल्तान भट्टा नेक आलम, जहाँ जोशुआ टीवी का हेड ऑफिस है रावलपिंडी में, यहाँ आकर आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जाने से पहले हम दुआ करेंगे, और मेरी दरख्वास्त है प्यारे भाई डीकन आसिफ मसीह साहब से, वो दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, यहोवा पाक खुदा लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, तबीब आज़म। ए खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे इस अजीम और जलाली और बाबरकत वक्त के लिए। ए खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि हम इस वक्त हम तेरे हजूर में हैं। ए खुदावंदों के खुदा, इस वक्त हम तेरे पाक और जलाली और बाबरकत नाम को मुबारक कह रहे हैं। ए खुदावंदों के खुदा, ये जो हमारी ज़िंदगियों में गवाही हैं ये सब तेरी बदौलत है। खुदावंदों के खुदा, वरना हम कौन थे, हम ना चीज़ इस काबिल इस लायक ना थे। ए खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ तेरे हजूर में, दुआ करता हूँ खुदा बाप इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। और खुदावंदों के खुदा, यहाँ पर जितने भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरी मिसेस, हमारे पास्टर साहब, और खुदावंदों के खुदावंद मेरे भाई कैमरामैन, उन सब को बड़ी बरकत दे। और खुदावंदों के खुदावंद अपना हाथ पड़ा और ब्लेसिंग और फजल अता फरमा। और खुदावंद इसी तरह हमें अपने साथ चलने का फजल और अपनी मोहब्बत हमारे साथ इसी तरह रखना। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं, मांगते और पा लेते हैं खुदा बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में, आमीन। आमीन। नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर
सिस्टर जी और डीकन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें, इसी तरह अपने घरानों को खुदावंद यीशु मसीह में कायम रखें और बढ़ाते रहें। नाज़रीन, जब हम जोशुआ की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं तो जोशुआ ने कहा था, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी की परस्तिश करेंगे। इसी तरह हमारे घरानों को ये करना है कि हमें खुदावंदी की परस्तिश करनी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।